warm welcome to everyone for the official press conference of the Asian Legends League T20 2025. Today is a very special day, not just because we are launching another cricket league, we are bringing back some of the greatest legends of the game from Asia for one more match. Madan Paliwal Virat Sports Center Asian Legends League सिर्फ एक लीग नहीं, एक सेलिब्रेशन है। क्रिकेट की विरासत का, उन प्लेयर्स का जो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे और उनके फैंस का जो उन्हें फिर से एक्शन में देखने का इंतजार कर रहे हैं। So mark your calendars, 10 March to 18 March, मदन पालीवाल विराट स्पोर्ट्स सेंटर ग्राउंड में 5 टीम्स मिलेंगी आपके सामने और 9 दिन चलेगा लेजेंड्स का ये महामुकाबला। भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, कतर, यूएई और अफगानिस्तान के शिखर सितारे नजर आएंगे इस लीग में। The objective of MPNSC Asian Legends League T20 is to bring our legends of the game back in action, to experience the thrill and relive the nostalgia of watching these legends play in the beautiful Nathdwara, from spiritual sanctity to sporting spirit. Nathdwara Sporting Revolution, ladies and gentlemen. To commence today's proceedings and give more insight into the league, may I please invite the CEO of MPNSC Asian Legends League, Mr. Mahavir Pratap Sharma, please on stage. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नाथद्वारा में जो हम कोशिश कर रहे हैं लीड करने की, लेजेंड्स के साथ मिलकर जो पूरे एशिया के देशों से आएंगे, हमारी कोशिश है कि न केवल क्रिकेट का जो प्यार और मोहब्बत है वो छोटे शहरों में जाए, जिन लोगों को लाइव मैचेस देखने का मौका नहीं मिलता उन तक हमें क्रिकेट को लेके जाएँ। ऐसे बढ़िया स्टेडियम और इंफ्रास्ट्रक्चर का सदुपयोग हो और कोशिश हमारी यही है कि एंटरटेनमेंट को, अच्छा क्रिकेट को, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को और ऐसा ब्रांड बनेगा कि हर साल यहाँ पे एक नहीं कई लीग हों, और उसी कोशिश में ये छोटा सा आज पहला कदम है। उस सब चीज़ों में जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनका बहुत बहुत आभार और आप लोगों से बहुत सहयोग की उम्मीद रखते हैं, क्योंकि खिलाड़ी तो बड़े आएंगे लेकिन शहर छोटा है, पहुंच ज़्यादा चाहिए पूरे देश भर में इस खबर को पहुंचाने के लिए। तो आप लोगों के सहयोग और सपोर्ट की पूरी कामनाओं के साथ मैं आप सबका दोबारा स्वागत करता हूँ। Center, whose team has ensured this venue is primed to host an event of this magnitude, it is my pleasure to invite the project manager MPNSC, Mr. Ajitab Rajan. I start with deep respect and humble regard to Honorable Founder and Chairman of the Minaj Group. A very warm respect to Honorable Vice Chairman of the Minaj Group, Mr. Mantaraj Paliwal. I warmly welcome respected Sri Mahavir Pratap Sharma, CEO of the League. Thank you, Saket Shah, for the lovely note. I warmly welcome the cricket legend, Mr. Chetan Sharma, Commissioner of the Asian Legends League T20. ये जंग है विरासत की। Good afternoon to all of you present. A very warm welcome. I am Ajitab Rajan, founder and director of Critical Services Private Limited. We are the project manager for the stadium, Madan Paliwal Virat Sports Center, or we call it as MPNSC. MPNSC is something that is very unique as a venue. It is not just a dream that is coming true. It's a decisive path forward for something which in time to come shall witness and emboss itself in the history of sporting. In Sanskrit we say, Vidya Vinay Shobhate, knowledge adorns and humility shines. This is the place. The founder and chairman, sir, Mr. Paliwal, has not only constructed it, he has clearly defined in his vision the objective. It's a leap forward of his love for Nathdwara to position in the global space a precedence with his very commitment to the city. MPNSC is the place that will groom pool of talents. It's a bustling infrastructure, be it sports for players, be it sports for coaches, be it space for businessmen, or be it sports for tech and innovation for Rajasthan and our beloved nation, India.
We are extremely elated and proud to host Asian Legends League T20. We welcome and wish best of the best games and matches for the teams and entire participants. The famous saying of the cricket game, it's not over until the last ball is bowled, fits perfectly here as well. This is a league that will push you to the edge of your seat. Best wishes to everyone. In the making of this league, may I please invite the Vice Chairman of the Mirage Group, Mr. Mantra Raj Palamal, up on stage, please. May I also invite former India cricketer and Chief Selector BCCI, League Commissioner NPMSC, Asian Legends League, Mr. Chetan Sharma, up on stage. And to join him, the CEO of NPMSC Asian Legends League T20, Mr. Mahavir Pratap Sharma. Basically, we conclude. So my father, who is a really had experience in Naswara, and very much that he Nagara को and great which has sports very Pakistan के segment का अगर लेते हैं पर कोई ऐसा sports related culture थोड़ा सी और काफी टैलेंट जो अच्छा परफॉर्म करते हैं प्लेटफॉर्म और स्टेडियम आने से और काफ़ी डेवलपमेंट की चीज़ें भी बढ़ती है काफ़ी लीग हो रही है लोगों को चांस मिलेगा कि लाइव क्रिकेट लाइव एक्शन को एंजॉय करेंगे टीवी से बैठे मतलब स्टेडियम भी वही सभी लोग जो यहाँ हैं जिनको पता होगा उदयपुर नागवार के आसपास के लोगों को कि ये स्टेडियम यहाँ पहले से है जो 20 साल पहले से क्रिकेट ग्राउंड है लेकिन पहले डिस्कस किया जाता था हमारे डोमेस्टिक इवेंट्स के लिए लेकिन जो मदद मेरा ग्रुप है उनका विजन ये है जिस जन्मभूमि पर उन्होंने जन्म लिया जो उनकी कर्मभूमि है वो वहाँ कुछ ऐसा डेवलप करना चाहते थे जो कि दुनिया में बहुत और दुनिया नागरा को अपने स्वयं के नाम से पहचाना इस कड़ी में पहले ही उन्होंने विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास स्वरूप के नाम से जिसे हम सब जानते हैं और उसे निर्मित किया और आज लाखों करोड़ों लोगों ने उसको पूर्णता देखा है इससे कहीं ना कहीं शहर की इकोनॉमी में यहाँ के डेवलपमेंट में उसका योगदान है और चूंकि वो बहुत बड़े स्पोर्ट्स लवर हैं उनका पैशन है कि कई सारे खेलों को बहुत शिद्दत से खेलते हैं और इसी क्रम में उनका ये भी मानना था कि चूंकि धर्म तो है ही लेकिन खेल जरूरी है जीवन के चरणों के विकास के लिए और उनका ये मानना था कि मैं ऐसी सुविधा को यहाँ विकसित करूँ जिससे उदयपुर या आसपास का जो टैलेंट है जो प्रतिभा है वो यहाँ परफॉर्म कर सके यहाँ चूंकि बड़े बड़े मैचों का आयोजन हो यहाँ वो जिन्हें ये मौका नहीं मिलता है कि वो लाए बड़े बड़े अपने जिनके वो विशेषता के खिलाड़ियों को भी देख सके तो इसी कड़ी में उन्होंने इस स्टेडियम का निर्माण किया और उनका ये प्रयास है कि उन्होंने जगह अपने प्रसिद्धि पाए उसके लिए जो जरूरी चीज़ें हैं वो भरसक कोशिश करते हैं कि सारी चीज़ें हम करें Thank you very much. Asian Legends Cricket League T20 होगा क्या सबसे बड़ी चीज़ आई आपके दिमाग में जब आपने सुना इस कॉन्सेप्ट के बारे में तो अब जो प्लेयर्स इस ज़माने के स्टार्स में सुपर स्टार्स थे अपने देश के अब वो आज वो लेजेंड्स हैं थोड़ा बुढ़ापा आ गया उनके ऊपर तो क्यों ना अब उन सभी को दोबारा मिला जाए उनकी स्किल्स को दोबारा तराशने की कोशिश की जाए बिकॉज पीपल हैव सीन देम व्हेन दे वर यंग पीपल माइट नॉट हैव सीन देम व्हेन दे आर ऑन लिटिल ओल्डर एज तो हमारा यही सोच है कि सभी को प्लेयर्स को वापस ग्राउंड में उतारा जाए और एक अच्छी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलने की कोशिश की जाए बिकॉज वो अपने आप में नाम बहुत बड़े हैं कुछ क्रिकेटर्स हैं कुछ कोचिंग हैं लेकिन जब वो प्लस में उतर के क्रिकेट खेलेंगे वो जज्बा दोबारा उन्हें देखने को मिलेगा और वो जज्बे को हम देखना चाहिए entertainment in the
एंटरटेनिंग क्रिकेट होगा, कम्पेटिटिव क्रिकेट होगा। और उसके अलावा हमने जो ये सोचा है कि ऑडियंस के इन्वॉल्वमेंट के लिए वी आर थिंकिंग कि काफ़ी उनके लिए इनाम कोशिश करें, लाखों रुपए के इनाम, कोई कैच पकड़ेगा उसमें, या अच्छा पैकेट होगा, या कोई लकी ड्रॉ होगा। वी ट्राइंग टू सी कैसे लोगों को भी इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि खिलाड़ी को भी मजा तब आता है जब ग्राउंड के साथ होता है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि लोकल क्राउड का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। उन्हीं के लिए हम आज वहाँ पे इतनी दूर आए हैं। ठीक है, रिकॉर्ड मीडिया सब्जेक्ट लेके जाएगा, क्योंकि लोकल क्राउड का इन्वॉल्वमेंट है, वो हमारी कोशिश है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के क्राउड को एक अच्छा एंटरटेनिंग क्रिकेट देखने को मिलेगा। मैं बहुत उदयपुर आया और उदयपुर मुझे लगता है राजस्थान में क्रिकेट वाइज काफ़ी पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर मैचेस बहुत कम होते हैं। हमने राजस्थान में जयपुर में बहुत मैचेस कवर किए, इवन हमने जोधपुर में मैचेस कवर किए। इतना सुंदर स्टेडियम जो पिताजी और आपने जो विजन, सर का विजन रहा है, एकदम सुंदर स्टेडियम मैंने नहीं देखा आज तक। बहुत समय के बाद एक अच्छा स्टेडियम देखा और इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए। देखिए 30-40 हज़ार से जब ज़्यादा कैपेसिटी हो जा रही है ना तो लोगों को मज़ा आता है, ना करवाने वालों को मज़ा आता है। और मेरा 5 स्टार होटल बीच में आया है। जब मेरे से रवि ने सर CEO सर ने सब डिस्कशन किया तो इससे बढ़िया वेन्यू क्या हो सकता है कि उदयपुर की पब्लिक मुझे अभी भी लगता है कि इंटरनेशनल क्रिकेटर से बहुत दूर है। तो सबसे पहला काम जो था कि हम उदयपुर चले, वहाँ पर मैचेस शुरू कराएं। अब ये हमारी पहली एंट्री हो रही है सर। धीरे धीरे आप देखेंगे कि बहुत चीज़ें, एक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। अगर एक क्रिकेटर को इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए, इससे बढ़िया बात क्या होगी। अब एक कदम ये है कि कदम सक्सेसफुल हो जाए, फिर आगे चलने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और कोई सवाल? One more, please, if you don't mind. Mr. Mahavir, corporate is involved, especially in the cricket, right? क्रिकेटर्स हैं जो एक्चुअली जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, बहुत अभी उन्हें 5वीं टीम लानी पड़ी। आपको मैं श्रीलंकन लॉयंस में और कॉलोनी साइड में इशारा पड़ेगा। अफगानिस्तान से असगर थे और उसके बाद मोहम्मद अशरफुल फ्रॉम बांग्लादेश। दीज आर कैप्टन्स बेसिकली। अब्दुल शकूर इज देयर, इज आइकन देयर। तो आपको पूरी लिस्ट अभी हम वी विल गिव यू द एंटायर लिस्ट। और इंडियन प्लेयर्स में से ही आपको बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स नजर आएंगे यहाँ पर। स्पेशली आप सच माने बहुत एक्साइटेड अबाउट शिखर धवन, क्योंकि आप इसको तो मैंने खेलते देखा जब से शिखर रिटायर हो गए, IPL से बाहर गए, प्लेइंग पहली लीग आगे बताई इंडिया में खेले होंगे, अभी नेपाल में रिसेंटली खेले। तो दे विल सी लॉट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स। वो क्रिकेटर्स जिनके हमने नाम सुने हैं, माइट भी हम लोग कई ये सोच रहे हैं भूल गए होंगे, लेकिन वो आपको देखेंगे। अभी ओनर्स ने जो पैनल और फ्लाइट उनको बाकायदा ऑनबोर्डिंग हो जाएगी। तो फाइनल जो प्लेयर्स की लिस्ट है और टीम के, वो 16 तारीख को सबके मालूम पड़ जाएंगे। पर ये जो नाम है प्रॉबेबल है कि डेफिनेटली आगे आना है। 234 rooms facing the ground, जो एक अलग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा और वो भी नाथद्वारा में। यही यूनिक फीचर इसलिए है कि नाथद्वारा इतनी बड़ी जगह नहीं है। ऑब्वियसली उदयपुर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, सारे 5 स्टार होटल वहाँ है, लेकिन अनवांटेड ट्रैवल टाइम खराब नहीं हो, खिलाड़ियों को सुविधा एक ही तरीके मिल सके। तो इट वॉज देयर कि जो यात्रा करने का समय जाएगा वो सुविधा ही यहाँ बना दी जाए ताकि वो समय खराब नहीं हो। तो यही उद्देश्य था कि स्टेडियम के साथ होटल को हमने कंसिडर किया। और 224 रूम का इसलिए क्योंकि वेडिंग डेस्टिनेशन है नाथद्वारा उदयपुर और कम से कम 200 रूम की आवश्यकता लगभग हर बड़े हैं। जी, my last question to मंचलाल जी, जो स्पोर्ट्स रेवोल्यूशन आ रहा है स्टेडियम के जरिए इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट खेला जाएगा, अब फैंस को क्या कहना चाहेंगे जो ये एशियन लेजेंड्स लीग के जरिए नाथद्वारा के स्टेडियम में इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट देखने वाले हैं? मैं तो क्रिकेट खेलता था,
under 16, under 19, 12 schools and cricket शुरू किया। मैंने अपना पहला मैच स्टेडियम में देखा था, तो एक्साइटमेंट पूरी अलग थी। मैं नहीं बता सकता आपको, आइए देखिए एज ए क्रिकेट फैन वो वो क्लीन मैच नहीं। Well, that's apologies to COO Ravi Kumar Yadav ji on stage to please address everyone right here. Let's have a huge round of applause for Mr. Ravi Kumar Yadav. Around thank you media for the coming in short notice. So बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारी चीज़ें थी और बहुत शॉर्ट टर्म में हमने चीज़ें करी हैं। तो मैं काफ़ी टाइम से क्रिकेट में हूँ, बीइंग एन ऑर्गेनाइजर। और जब मैंने नाथद्वारा का वीडियो देखा स्टेडियम का समवेयर फ्लोटिंग अराउंड कि दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टीज कमिंग टू नाथद्वारा एंड विद द 5-star होटल, देखो फिर एक चीज़ अलग है, जब हम IPL जयपुर में करते हैं तो बहुत सारे लोगों को आते हैं टिकट्स खिलाड़ी देखने के लिए अवेलेबल, और वो इतना मतलब पैक होता है कि चीज़ें मिलती नहीं है। तो आई कम टू मिराज को डायरेक्टली एंड मीट लक्ष्मण सर एंड मीटिंग, और उनसे मिलने के बाद जब हमारा कन्वर्सेशन हुआ तो एकदम से हमने कहा सर दिस इज दी होना चाहिए कि नाथद्वारा उदयपुर में एक इंटरनेशनल फील्ड का स्टेडियम हमने दिया है और काफ़ी अच्छा ये प्लेस है, यहाँ पे लीग होनी चाहिए। तो बहुत ही ओपनली उन्होंने कहा लेट्स डू दिस, और उन्होंने जो वेलकम दिया, जो कहते ना कि हमारे यहाँ की वो है कि वेलकम जिस तरफ से किया, तो मैं बड़ा कहना चाहूँगा कि उस चीज़ से काफ़ी कनेक्ट हुआ एंड हमने चीज़ों को बहुत जल्दी देखा और इतनी स्पीड से, मतलब कि अभी भी टाइम था चीज़ों को, इन्होंने जो अरेंजमेंट्स किए ग्राउंड पे, मतलब फील्ड है ग्राउंड का 91 मीटर बाउंड्री, कैपेसिटी ऑफ 35,000 प्रेसिडेंशियल बॉक्सेस, कॉर्पोरेट बॉक्सेस, तो हमने तुरंत इस चीज़ को बिल्कुल ओके किया। और आगे क्या लीग में होगा, जैसे प्लेयर्स के लिए आप बताना चाह रहे हैं, तो 5 टीमें हैं हमारे पास में, 5 फ्रेंचाइजीज हैं। 15 तारीख को ड्राफ्ट होगा जयपुर बिग सिटी में, मूवमेंट होगा, सेलिब्रिटीज मूवमेंट होगा, और इंडियन डांसर्स के साथ में यहाँ पर लोगों की सेरेमनी करने जा रहे हैं। तो एक मतलब आपको फील वही आने वाला है कि जो मिस कर रहा था उधर वी आर होस्टिंग हियर, एंड आई विल प्रॉमिस यू गाइस एंड महावीर जी हैव सेड कि वी आर नॉट स्टॉपिंग हियर, हम आगे और भी लीग्स कंटिन्यू करेंगे, मेक श्योर करेंगे कि जो ये गैप रहा है नाथद्वारा और उदयपुर को जो बेल्ट को नहीं मिला क्रिकेटिंग का, तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ मिराज को डेफिनेटली आप सभी को थैंक यू। MSC Asian Legends Cricket League T20. Thank you so much for your presence and support. Thank you to all the dignitaries for joining us on stage, and you guys have a wonderful evening. Thank you so much. कौन खिलाड़ी बहुत बढ़िया आयोजन रहता है, मज़ा आएगा उदयपुर की पब्लिक को, क्योंकि उदयपुर में बहुत कम क्रिकेट खेलते हैं और उदयपुर इतनी बेहतरीन जगह है, लोग घूमने आते हैं, तो हम कहते हैं घूमने आए, हम आपको अच्छी क्रिकेट देंगे, बहुत बढ़िया। एंड सुपरस्टार्स जो येस्टर ईयर्स के सुपरस्टार्स हैं वो यहाँ पर खेलेंगे, और वालीबॉल परिवार ने जो विजन रखा है इस ग्राउंड का, मैंने ऐसे ग्राउंड्स बहुत कम देखे, बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करता है, 91 मीटर्स की बाउंड्री है, 5-star होटल पर। एक ही ऐसा ग्राउंड है जो इंग्लैंड में है अभी तक, जिस पर इंटरनेशनल गेम्स खेले जाते हैं, वहाँ पर 5-star होटल है, टीम वहाँ रुकती है। ये मुझे लगता है इंडिया में पहला कॉन्सेप्ट है जिस ग्राउंड में 5-star होटल फैसिलिटीज़ है। मैं हर समय मानता हूँ कितना टाइम बचता है प्लेयर्स का, आप उसी जगह पर रुके हैं, उसी जगह पर आप खेल रहे हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट था उसके ऊपर अगर हम लेजेंड्स को लेकर आते हैं तो इससे बड़ी बात क्या होगी, क्योंकि वो लीग बहुत ही बेहतरीन और बहुत डिफरेंट लीग होने वाली है, बहुत लोग इन्वॉल्व इसके अंदर होंगे। अभी हमारे CEO साहब ने भी बताया कि जो कोचेज़ हैं, अगर विवन रिचर्ड जैसा नाम आ रहा है तो एज ए चेयरमैन मैं भी उनको खड़े होकर सिर्फ देखूंगा कि वो कोचिंग कैसे करते हैं, इतने बड़े नाम हैं। तो इतने बड़े बड़े नाम जब आते हैं तो आप उनके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं, उनकी जितनी क्रिकेट इस समय वो खेल सकते हैं और वो हम देखना चाहते हैं। और हमने उनको टेलीविज़न में या रेडियो पे सुना है, और आज जब ग्राउंड पे उनको देखेंगे, आई थिंक सो उदयपुर की पब्लिक के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। कितनी टीमें हैं इसमें हिस्सा लें? 5 टीमें हैं इसके अंदर,
इसके अंदर एक इंडियन 11 है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और एक एशियन 11 हमने इसलिए डाली है कि कुछ प्लेयर्स हैं जो आसपास जैसे नेपाल हो गया, सिंगापुर हो गया, यूएई हो गया, और या इंडिया के कुछ प्लेयर्स काफ़ी लोग खेलना चाहते हैं, वो रह गए, तो हम उस एशियन लीग के एशियन टीम के अंदर उनको एडजस्ट कैसे कर रहे हैं? मैं चयन करता रहा हूँ, मैं चयन कर लूँगा। वो हम देखिए, जो लेजेंड्स हैं वो लेजेंड्स हैं, उनकी क्रिकेटिंग एबिलिटीज़ हमें नहीं देखनी, हमें सिर्फ कॉम्बिनेशन देखना है कि कितने ओपनर्स और कितने फास्ट बॉलर्स और कितने स्पिनर्स हमें वहाँ पर चाहिए, उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन। नहीं, उधर नहीं नहीं बात जो वो नहीं चाहते हम चाहते हैं कि बीच में इसी स्टेडियम में होने जाएगा, और हमारे को उम्मीद है कि देश भर के और एशिया भर के जो लेजेंड्स हैं वो आके यहाँ पे एक स्पोर्ट्समैन की तरह एंटरटेनिंग क्रिकेट को देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, BCCI रेफरीज, BCCI कमेंटेटर्स और टेलीविजन पर उसका आयोजन होगा। कब से शुरू हो गया? 10 मार्च से लेकर 18 मार्च के बीच में ये आयोजन किया जाएगा इस स्टेडियम में। बहुत बड़े नाम यूनुस पठान है, इरफान पठान है, पठान ब्रदर्स हैं, सुरेश रैना है, सुरेश रैना है, शिखर धवन है, बहुत बड़े ये सब आएंगे। ठीक सर, क्या उद्देश्य है करने का ये, इसका क्या? उद्देश्य हमारा बड़ा साधारण सा है कि हिंदुस्तान में क्रिकेट रग रग में बसा हुआ है, लेकिन लाइव मैचेस देखने का मौका छोटे शहरों में और नहीं मिलता था। लेकिन जब हमने ये स्टेडियम देखा और इनकी सोच और पैशन देखा वॉलीबॉल परिवार का, तो हमको लगा यहाँ पे असली क्रिकेट होना चाहिए, बजाय इसके कि लोकल क्रिकेट हो। तो वो एक उनको उस एक्सपीरियंस, उस एंटरटेनमेंट के साथ, उस ओपनिंग, उस क्लोजिंग सेरेमनी के साथ, वही टेलीविजन, वही लाइव के साथ हमारी कोशिश है कि इसका प्रचार और आम जनता को उसका मिले, और कुछ खिलाड़ी, कुछ लोग लोकल एनकरेज होकर बाहर से क्रिकेट के लिए भी अपना जीवन समर्पित करें।